ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। दिस इज आवर पेपर। कंप्यूटर साइंस, अक्टूबर नवंबर 23। और दिस इज 9618 पेपर 23। हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं और हम टूवर्ड्स मतलब लेटेस्ट टू ओल्डर ऑर्डर में हम जा रहे हैं। और जितने भी हम पेपर सॉल्व कर सके अंटिल एग्जाम, वो हम हर थर्ड डे पे एक पेपर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। सो let us start. So this is question 1. Refer to the insert for the list of pseudocode. So we will be looking into insert time to time as and when required. तो अभी फिलहाल तो चलते हैं आगे। A program is being developed. A program is being developed in pseudocode before being converted into programming language. The following table shows 4 valid pseudocode assignment statements. Complete the table by giving the data type that should be used to declare the variable underlined in each assignment statement. All right, so अब आप देखें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, it says my variable 1 is equal to total 1 divided by total 2. अब आप देखें ये जो स्टेटमेंट है, the division of two numbers typically results in a real value, even if both total 1 and total 2 are integers. Therefore, the data type for my variable 1 should be real or integer, depending on whether total 1 and total 2 are intended to represent integers, which might result in an integer division, or real numbers. However, in most pseudocode conventions, division result is always real, unless explicitly stated otherwise. तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है तो डिवीजन में पॉइंट्स तो आ ही जाते हैं 99.9%. Second one is my variable 2 is equal to 27 divided by 10 divided by 2023. अच्छा, अब देखें यहां पर अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि हम इसको किस तरीके से मॉनिटर करें। क्या हम इसको एज डेट लें या एज एक्सप्रेशन लें? तो आपका सिलेबस जरा इस मामले में थोड़ा सा वेग चलता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहता है। अब देखें टेक्निकली this statement appears to assign date to my variable 2, so the data type should be date. अच्छा, अब देखें इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर ये डेट है तो इट हैज टू बी आइदर दिस वे और विदाउट दिस वे। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ फील हो रहा है कि योर एग्जामिनर मेंट टू बी द डेट, तो आप इसको एज डेट ही लीजिएगा। टेक्निकली यू माइट फील कि इसको क्योंकि किसी भी चीज में इनक्लोज नहीं किया गया है तो यू शुड नॉट वरी। इफ इट सीम्स लाइक अ डेट यू शुड गो फॉर डेट। ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही जहन में रखिएगा। ऑलराइट। अच्छा, सम डिवाइडेड बाय सम 2, लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर इन्होंने इसको डबल कोटेशन में रखा है। डबल कोटेशन इज मेंट टू बी string. Double quotation is meant to be string. So my variable 3 is equal to sum 1 over sum 2, but it is in double quotation. So this is a string literal. Literal means constant being assigned. So my variable 3 should be declared as string.
अच्छा, अब यहां पे देखें रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू। रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू, द एंड ऑपरेटर ओवर हियर is used for logical operations. AND operation is used for logical operations. So, which means result 1 and result 2 are Boolean values, and thus my variable 4 should also be Boolean. ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अब हमें यहां पे इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, अब इस इवैल्यूएशन पर हम आ जाते हैं। इवैल्यूएट का मतलब है कि आप जो है वो रिजल्ट निकालें। इवैल्यूएट ऑलवेज मीन्स टू फाइंड द रिजल्ट, मतलब द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, how the expression is actually ending, what is the result of expression. So other variables in the program have examples values as shown. Active true है, fraction जो है 0.2 है, real है, code जो है वो a b 1 2 3 4 5 है, so it is a string. So for fraction is greater than or equal to 0.2 and not active, not active का मतलब है कि जो भी active होगा वो reverse हो जाएगा, true होगा तो false हो जाएगा, false होगा तो true हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब जो है not active, not जहां पर भी आता है it always means false. So evaluate to false, ये वाला जो होगा evaluate होगा किस पे, 0.2 and not active। सही है, so evaluates to false since active is true। ठीक है ना, तो ये false बनेगा। एक्टिव ट्रू है तो नॉट एक्टिव हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, और एंड के अगर लेफ्ट या राइट पर एक भी फॉल्स आ जाता है तो आंसर फॉल्स हो जाता है। नाउ इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन इनटू 100 प्लस 13.2। सो देखें, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज 0.2, सो दिस इवेल्युएट्स टू 33 बेसिकली। ठीक है ना, फ्रैक्शन इंटू 100, 0.2 इंटू 100 हो जाएगा, और वो हमारे पास हो जाएगा 10। सही है, तो 10 प्लस 13.3 बिकम्स 20 बेसिकली, सॉरी 20 प्लस 13.3 विल बिकम 33.3। और इस पे हम जब इंटीजर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को जो है वो हमेशा ड्रॉप कर देता है। तो जब हमारे पास 33.3 होगा तो 0.3 ड्रॉप हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा वो 33 आ जाएगा। अब स्ट्रिंग टू नम जो है वो बेसिकली आपको, जो आपके पास इंसर्ट होगा वो आपको जो है इन लोगों ने दिखाया होगा। आपको इंसर्ट एक मिला हुआ होगा, ठीक है, वो इंसर्ट जो है आप लोगों को देखें, हम एक इंसर्ट को विजिट कर लेते हैं। अब आप यहां पर इस इंसर्ट को देख सकते हैं, इसमें सारे हम देख लेते हैं। लेफ्ट का फंक्शन एज यूजुअल, जो लेफ्ट है हमने पढ़ा है कि लेफ्ट से स्ट्रिंग उठा लेता है। राइट का फंक्शन जो है वो राइट से काउंट करके स्ट्रिंग उठा लेगा। मिड का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में से उठाएगा, वाई से स्टार्ट करेगा और सॉरी एक्स से स्टार्ट करेगा, वाई कैरेक्टर्स को पिक करेगा। लेंथ का फंक्शन जो है स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा और रिटर्न करेगा। टू अपर वुड वर्क लाइक अपर केस, सो वट एवर द डाटा जो आप देंगे टू अपर को वो अपर केस में रिटर्न कर देगा। तो अगर उसमें नंबर्स होंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे वो सब अपर केस में ट्रांसफर हो जाएंगे। टू लोअर डज द सेम बट फॉर लोअर केस।
इसके बाद हमारे पास जो है नम टू स्ट्रिंग है। नम टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, नंबर से स्ट्रिंग में कास्टिंग कर रहा है। सो इट इज टर्निंग अ नंबर इनटू स्ट्रिंग, इट इज सेड टू बी कास्टिंग। सो returns string representation of the numeric variable. For example 87.5 है तो ये quotations में आ जाएगा, this would become a string, मतलब ये 4 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव है, अब x की वैल्यू नेगेटिव है, द रिटर्न वैल्यू विल बी स्ट्रिंग बिगनिंग विद द नेगेटिव। अगर यहाँ पे -87.5 होता तो यहाँ पे डबल कोटेशन में आपको -87.5 मिलता। स्ट्रिंग टू नम डज अदर वे राउंड, ये भी कास्टिंग है, ये स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में नंबर है एस 5 कैरेक्टर्स तो वो आपको 23.45 की फॉर्म में मिल जाएगा। इसकी एग्जैक्ट अर्निंग होगी। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि स्ट्रिंग टू नम में अगर आपके पास ये शुरू होगा लेटर्स से बजाय डिजिट्स के तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर डिजिट्स के बाद न कोई लेटर्स होंगे तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब अगर लिखा होता 23.45 जफर तो जो आंसर आता वो 23.45 होता। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता जफर 23.45 तो वो एरर आ जाता या जीरो आ जाता, डिपेंड्स। सर व्हाट इफ इट वाज 13.8 इंस्टेड। इंटीजर की अगर बात कर रहे हो हमद, तो इसका मतलब होगा 13.8 जो होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में 0.8 हो, 0.9 हो, 0.999 हो, इंटीजर ऑलवेज ड्रॉप्स। अच्छा, इस नंबर जो है वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर आपने जो स्ट्रिंग दिया हुआ है अगर उसमें सिर्फ नंबर है तो वो ट्रू करेगा, और अगर उसमें नंबर नहीं है तो वो उसको फॉल्स करेगा। ठीक है, सो इस नंबर, अगर स्ट्रिंग में आपके पास नंबर है तो वो उसको बोलेगा हाँ ये नंबर, अदरवाइज वो उसको फॉल्स देगा। एस की जो भी आप कैरेक्टर देंगे उसका वो एस की कोड आपको रिटर्न करेगा। जैसे ए का 65 होता है और बी का जो है वो 66 होता है। याद रखें कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोट में और स्ट्रिंग्स को डबल कोटेशन में शो करते हैं। CHR डज द अदर वे राउंड, जो आप इसको नंबर देंगे वो उसका आपको एस की कैरेक्टर रिटर्न करेगा। integer of x returns integer, returns the integer part of the x. Hamad, pay attention to this. Returns the integer part of x. तो अगर 27.5415 है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 27। तो जो ये बेसिकली ड्रॉप कर देता है पॉइंट वाला साइड, तो सिर्फ इंटीजर वाला साइड आपको रिटर्न करता है। रैंडम का फंक्शन क्या करता है, रैंडम का फंक्शन ये करता है कि जो भी आप इसको x की वैल्यू देंगे 0 से लेके x-1 तक, यहां पे ये बता रहा है। ये देखें रैंडम का फंक्शन ना हमेशा परेशान करता है, रैंडम का फंक्शन हमेशा परेशान करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि रैंडम किस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया। अभी इस वक्त इस पर्टिकुलर इंसर्ट में जो रैंडम इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है वो इस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो उसका पॉइंट वाला जो सॉरी ये जो एक्स वाला पार्ट है, लेट से वो 10 है तो 0 to 9 आएगा, यानी कि x-1 तक चलेगा, और जो आंसर होगा वो रियल में आएगा। ये सब फंक्शन ना, अब बस फर्क ये है कि ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, सिस्टम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी मौजूद है। तो इट रिटर्न्स फ्रॉम 0 to x-1 एंड द रिजल्ट कुड बी इन द रियल फॉर्म। तो इसका मतलब है हमें इसमें इंटीजर लगा के फिर इस्तेमाल करना होगा। डेट के फंक्शंस में हमारे पास डे आता है, तो आप जो भी इसको डेट देंगे उसका डे रिटर्न कर देगा। डे का मतलब क्या हुआ, डे नंबर, मतलब ये 4th डे है तो 4/10/2003 तो 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, मंथ में ये 10 रिटर्न कर देगा जो भी आपका मंथ होगा, और ईयर में ये आपको जो भी ईयर आपका डेट के अंदर होगा वो रिटर्न कर देगा। तो ये आसानी ये होती है कि जब आप इसको ऐसा वेरिएबल देते हैं जिसकी डेटा टाइप डेट होती है तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देता है डे भी, मंथ भी और ईयर भी। ठीक है, अब डे इंडेक्स का मतलब क्या है, returns the day index number from this date where Sunday is equal to 1, Monday is equal to 2। तो संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से ये आपको रिटर्न करता है। संडे 1 है तो मंडे 2 है, तो अगर आपके पास ट्यूसडे होगा तो ऑब्वियसली संडे मंडे ट्यूसडे 3 आ रहा होगा आंसर। तो ये यहाँ पर 7th को जो भी डे होगा, डे ऑफ द वीक है ये, बेसिकली डे इंडेक्स रिटर्न्स यू डे ऑफ द वीक। सेट डेट का मतलब ये है कि रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप डेट विद द वैल्यू डे मंथ ईयर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो इंसर्ट बने हुए हैं ना, ये विद रिस्पेक्ट टू पाइथन लैंग्वेज बने हुए हैं। जब आप पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये चीजें उससे काफी ज्यादा मैच करती हैं।
ठीक है, तो सेट डेट आपके पास आ रहा है, तो सेट डेट में क्या होगा कि आप कोई सी भी डेट सेट कर सकते हैं। जब ये डेट आप डे मंथ और ईयर इसको भेज दें तो ये आपको डेट का वेरिएबल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो सेट डेट हमने लिखा 26/10/23, रिटर्न्स अ डेट करस्पॉन्डिंग टू 26/10/23। तो आप इसको बनाने में, डेट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप डायरेक्ट डेट को नहीं लिखेंगे। अब आप देखें ऊपर ये इशू हो रहा था ना हमें, कि वो तो डेट तो सिर्फ 26/10/23 लिखी हुई थी, 2003 लिखी हुई थी, लेकिन हम उसको बनाएंगे कैसे? हम सेट डेट के फंक्शन को कॉल करके उसको डेट का डे, मंथ और ईयर भेजेंगे, तो रिटर्न में हमें वो डेट रिटर्न कर देगा। टुडे का मतलब है कि आज की डेट, जो भी आज की डेट होगी वो रिटर्न करेगा। अच्छा, टेक्स्ट फाइल में हमें पता है एंड ऑफ फाइल क्या करता है। जब हम आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं तो एंड ऑफ फाइल का फंक्शन ट्रू हो जाता है और ये हमें बताता है कि क्या हमने आखिरी लाइन पढ़ ली है। ये कॉन्कैटिनेशन है, ये दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है। एंड का फंक्शन जो है वो एंड का जो लॉजिक है उसको परफॉर्म करता है। और नॉट मॉड, मॉड आपको रिमाइंडर देता है। डिव जो है वो आपको इंटीजर कोशेंट देता है। फाइंड्स द कोशेंट व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। कोशेंट का मतलब कौन सा हो गया? इंटीजर कोशेंट। जैसे 15 डिव 2, तो 2 7s 14 होते हैं, तो 7 इसका आंसर आएगा। कंपैरिजन में हमारे पास इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। ओनली दिस वन इज डिफरेंट देन आवर जनरल लाइफ एग्जांपल्स। सो दैट्स अबाउट इट अबाउट इंसर्ट। तो अब ये इंसर्ट को हम ध्यान में रखेंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम ये जो होगा वो हमसे पूछा जाता रहेगा। ठीक है, कि टाइम टू टाइम हमसे पूछा जाता रहेगा तो हम इसको देखते रहेंगे, हम इसको जवाब देते रहेंगे इनको। ठीक है, तो अब हम जो है वो चलते हैं आगे। सो स्ट्रिंग टू नम। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे मिड देखना है, तो मिड कोड। अब आपके पास जो कोड है वो ये है, तो मिड कोड 4,2। तो हम यहाँ से 1 2 3 4, 4,2 23 उठाएंगे। सही है, मिड जो है वो 4,2 23 हम उठा लेंगे। 23 को हम उठा के उस उसको जो है स्ट्रिंग टू नम से कन्वर्ट करेंगे 23 में, तो ये 23 एज अ नंबर आ जाएगा। और इसमें फिर हम इस पूरे का जो आंसर है, इस पूरे का आंसर यहां से यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा? 23। फिर हम उसमें +5 करेंगे तो ये हमारे पास 28 हो जाएगा। तो दिस इज आर 28 थिंग। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारे पास जो कोड है वो है AB 1 2 3 4 5। तो ये 7 डिजिट्स हैं कोड के अंदर, और ट्रू जो है वो 4 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं, 5 6 7, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4। तो 4 + 7 हमारे पास हो जाता है 11 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट बनेगा इसकी कॉन्कटेनेशन के बाद, वो बनेगा ट्रू AB 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जब आप इसकी लेंथ लेंगे, आप इसकी लेंथ लेंगे, तो ये लेंथ वुड बी 11। ठीक है, so this is basically 11. So that is how it will be evaluated. So whenever they say evaluate, it means that solve the expression and find the result and tell them about it. अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी जो है वो हमें कहता है कि the program makes use of the program The program makes use of complex statistical functions. The required functions are not built in to the programming language and are too complicated for the programmers to write. One solution would be to employ another programmer who has experience of writing these functions. As this is no there is no time to train the existing programmer. State one other way that these functions may be provided for inclusion in the program. All right. So
अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अ, अब हमें तो सिर्फ इसमें एक छोटा सा आंसर बताना है, वो तो हम राइट अवे बता सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इट, ठीक है ना? Basically, another way to include these complex statistical function in the program without having to write them from the scratch or hiring an additional programmer is to use a library or a framework that provide these functions. तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी क्या होती है? पहले से बने हुए प्रोग्रामिंग के साथ, लैंग्वेज के साथ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ पहले से बने हुए फंक्शंस का एक कलेक्शन होता है। जावा में जावा बीन्स है, हमारे पास पाइथन में भी लाइब्रेरीज होती हैं, हमारे पास विजुअल बेसिक डॉट नेट में डॉट नेट की लाइब्रेरी, हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। सी में भी लाइब्रेरीज होती हैं, सी में हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं, पाइथन में हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से विजुअल बेसिक में भी हम उन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट जेएस और जैंगो। यस, बिल्कुल सही है शब्द। तो प्रोग्राम लाइब्रेरी और लिंक लाइब्रेरी सही है। लिंक लाइब्रेरी नहीं लिखेंगे बेटे मुनिम, प्रोग्राम लाइब्रेरी लिखेंगे इसके अंदर। सो वीबी में भी यस, बिल्कुल। अब्दुल राफे इज माय स्टूडेंट हु हैड एक्चुअली मेड हिज ओन लाइब्रेरी और फिर उसको उसने यूज किया था दूसरे प्रोग्राम्स में। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। सो स्टेट वन अदर वे, तो हम इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम लाइब्रेरी, हम इसको यूज ऑफ लाइब्रेरीज को फ्रेमवर्क भी कहते हैं। So another way to include these complex statistical functions in the program without having to write them from scratch or hiring an additional programmer is to use the program library, ठीक है, या use of library या framework that provides these functions. Libraries and frameworks often contain a wide range of pre-written code, including complex functions that can be easily integrated into your program. This approach can save significant development time and effort, allowing you to focus on other aspect of the program. So, program libraries, या आप सिर्फ library भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो writing just library would be enough. So do not get deceived by these two lines. Pay attention to this. This is technical paper. A proper single word would also be suffice. अच्छा, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। ये है पार्ट डी, ठीक है, ये पार्ट डी है। अब इस पार्ट डी में हम पढ़ते हैं, the hardware that runs the program is changed and the program needs to be modified so that it works with the new hardware. Identify the type of maintenance that this represents and give one other reason why this type of maintenance would be needed. अब आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी मेंटेनेंसेस होती हैं, इसमें एक एडेप्टिव होती है, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली टाइप जो है वो हमें एडेप्टिव मेंटेनेंस चाहिए होती है। द सिनेरियो डिस्क्राइब्ड हियर represents a case of adaptive maintenance. What? Adaptive maintenance. This type of maintenance is required when a software system needs to be made to work in a new or changed environment, such as when running on a new hardware, a new operating system, or alongside different software. It involves updating the software to ensure compatibility with the changed environment, but does not necessarily add new functionalities or fix bugs. So another reason why adaptive maintenance may be needed is software system upgrades or updates. When other systems or software components that your application interacts with are upgraded or significantly changed, your software might need to be modified to ensure continued compatibility, performance, and security. This could involve updating API calls. API क्या होती है? Application Programming Interface. Sometimes हमें लिखने पड़ते हैं, जब दो प्रोग्राम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके जो बीच में सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं उनको हम API कहते हैं, Application Programming Interface, when two applications talk to each other. So this could involve updating API calls, changing data formats,
or other alterations to maintain seamless interaction and functionality. So anyways, तो हमें यहाँ पे जो रीजन है वो सिंपलीफाई अगर हम करें तो रीजन वुड बी to accommodate changes, to accommodate changes होगा. ठीक है. चेंजेस, अब आप चेंज में लिख सकते हैं चेंजेस इन environment, operating system, or other लेजिस्लेटिव भी आप लिख सकते हैं, जो लॉ में चेंजेस आते हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, इस तरीके से आप उनको भी लिख सकते हैं. अदर लेजिस्लेटिव, जो भी आपके पास ऐसी इन्वायरमेंट आ जाए जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़े, चाहे वो हार्डवेयर की हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की हो, गवर्नमेंट की हो, व्हाटएवर इन्वायरमेंट की हो, कोई आपने अपना बिजनेस की प्रैक्टिसेस चेंज कर दी हैं, सब के अंदर जो है वो यहाँ पर एडेप्टिव मेंटेनेंस ही आएगी. अब आ जाए हमारे पास data is a 1D array of integers. All right. Data is a 1D array of integers containing 30 elements. All elements values are unique. सही है. All element values are unique. अच्छा, अब देखें, an algorithm will output the index of the element with the smallest value. Draw a program flowchart to represent the algorithm. अब इसका हम पहले क्या करते हैं, हम इसका पहले एक जो है वो सूडो कोड एक छोटा सा लिख लेते हैं. ठीक है. तो अब हमें क्या है, हमें करना ये है कि डेटा इज ए 1D array of integers containing 30 elements. All element values are unique. An algorithm will output the index of the element with the smallest value. This is something alongside जो हमारे पास वो ओ लेवल में ऐसे सवाल काफी कॉमन आते थे, तो वो हमारे जहन में होंगे, तो हम जो है उन्हीं को सामने रखते हुए बनाते हैं इसको. तो सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं. डिक्लेयर उसमें नहीं होता, फ्लो चार्ट में नहीं होता, हम पहले एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो फिर हम सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं. डिक्लेयर कर लिया हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू एज इंटीजर. फिर हम डिक्लेयर कर लेते हैं डिक्लेयर इंडेक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट इंडेक्स आई एज इंटीजर एज वेल. आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं. अच्छा, फिर हमें एरे बनाना है. नहीं, एरे तो बना हुआ है मेरे ख्याल से. एरे का इन्होंने क्या बोला, एरे का इन्होंने बोला डेटा इज ए 1D array ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग 30 एलिमेंट्स. तो इसके अंदर, इसका मतलब है इसके अंदर एलिमेंट्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं. अब हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को एरे की. एरे का क्या नाम है, डेटा. सही है. डेटा हमारे पास एरे का नाम है डेटा की फर्स्ट वैल्यू के ऊपर. ठीक है. डेटा की जो फर्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को और स्मॉलेस्ट इंडेक्स को हम कर देते हैं 1.
सही है, तो जो भी डाटा की पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास अभी तक की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई और वो फिर आ गया। अब हम यहां पे फॉर नेक्स्ट का एक लूप चलाएंगे। फॉर आई इज इक्वल टू, अब हम 2 से करेंगे, 1 तो हमने उठा लिया है ना, 2 to 30। अब हम इसमें लिखेंगे इफ डेटा आई इज लेस देन smallest value, then smallest value is equal to data I। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्योंकि इंडेक्स भी लेनी है तो हम एक लाइन में नहीं लिख सकते, तो हम इसको अगली लाइन में ले आएंगे। अब हमें क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स भी लिखनी होगी तो हम यहां पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू आई। अब हम यहां पे इसको एंड इफ कर देते हैं। अब यहां पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट। रिमेंबर कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, ताकि वो स्टैंड आउट करें। अब हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, और यहां पे हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये सवाल पूरा हो जाएगा। An algorithm will output the index of the element with the smallest value. So we don't need anything. अब ये वाला जो पार्ट है, this part, this is not required in flow chart। ठीक है, तो अब आप इसको सीधे सीधे यहां पर बना लीजिए। तो बनाना इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करें कि यहां पर आप शुरू करें स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, कुछ लोग मार्किंग स्कीम में भी ऐसा होता है कि सेट लिखते हैं, सेट, सेट स्मॉलेस्ट। तो हम यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू डेटा 1। ठीक है, और इसके बाद स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 1। फिर आई भी हमें बनाना है, आई इज इक्वल टू 2 से हम शुरू करेंगे, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ये हमने, क्योंकि प्रोसेस है, असाइनमेंट हमेशा प्रोसेस होती है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। अब ये 2 है, 2 है, इसके बाद हम जाके चेक करेंगे कि इज, आपको पता है इफ नहीं लिखते, इज लिखते हैं, इज। अब आप देखें यहां पर हम डेटा आई इज लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला करेंगे, इज डेटा आई इज लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। यस पे हम राइट साइड पे चले जाएंगे और राइट साइड पे हम लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू डेटा आई और स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने यहां पर बना दिया। इसके बाद हम जो है वो आगे चले जाएंगे नो पे, और ये यहां पर आके एंड इफ हो जाएगा। इसके बाद हम आई को लिखेंगे इस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि ये फॉर नेक्स्ट का काउंट है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इज आई 30th तो हमें चलाना है, इज आई इज इक्वल टू 31। तो जैसे ये 31 कर देगा, 30th तक तो हमारे पास चलाना है ना। अगर आप इसको 31 अगर जैसे ये हो जाता है तो इसका मतलब दैट्स इट, अब हमें आगे नहीं जाना। तो अगर ये नो है, तो नो है तो हम इस पे वापस यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे जाके ये नो हो गया। और अगर यस है तो हम यहाँ पर आते हैं यस, और यस पे आके हम क्या करेंगे कि हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट स्मॉलेस्ट आई।
और इसके बाद ये एंड हो जाएगा। सो दिस इज इट, अ सिंपल, वेरी सिंपल कोड हमारे पास फ्लो चार्ट में। दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट जो है वो हमारे पास है अ, अगले पार्ट में हमें कहता है ये कि द 30 डेटा वैल्यूज कुड हैव बीन स्टोर्ड इन सेपरेट वेरिएबल्स रादर देन इन एन एरे। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन एरे व्हेन डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन टू पार्ट ए। अच्छा, अब देखें, इसकी ना काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो सकती है। एरे जो है, अगर आप मार्किंग स्कीम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटे छोटे से वर्ड्स होंगे, लेकिन आई नीड यू टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नॉट फॉर टू पार्ट्स बट टू कंप्लीट द थिंग। तो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जब ये रिविजन्स करेंगे पास पेपर्स की। जी हाँ, जी हाँ मुने, जब हम इसकी पास पेपर की रिविजन्स करेंगे तो बेसिकली मैं आपको साथ साथ पूरा पूरा डिस्कस करूंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो the 30 data values could have been stored in separate variables rather than in an array. Explain the benefits of using an array when designing a solution to part A. So using an array to store 30 data values instead of separate variables offers several significant benefits, particularly in context of finding the smallest among them. तो सबसे पहले क्या होगा, सिंप्लीफाइड कोड होगा। स्टोरिंग द डाटा in an array allows for the use of loops to iterate over the elements. This significantly reduces the amount of code needed compared to having separate variables for each value, where you would need to manually compare each one. With an array, you can write more concise, readable, and maintainable code. दूसरी चीज है स्केलेबिलिटी, यानी कि साइज। So if the number of data values changes, it's much easier to adjust an array size or iterate through the different numbers of elements dynamically. With individual variables, adding or removing a data point would require adding or removing a variable and updating every part of the code that interacts with those variables. तो उसमें क्या होगा कि जितने ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी होता है दूसरा इसका फायदा। ठीक है ना। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई कर देता है। तो पहला हमारे पास क्या हो गया कि सिंप्लीफाइड कोड। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाइड कोड। अच्छा, स्केलेबिलिटी हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास स्केलेबिलिटी, यानी कि साइज जब बड़ा होता है तो हमारे पास एरे वाले कोड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन वहां पर हमें उतने ही वेरिएबल्स का सिस्टम बढ़ाना पड़ता है। Ease of manipulation. Performing operations on a collection of data such as sorting, searching, filtering is straightforward with arrays. These operations are supported by most programming languages directly on array, making it easier to implement complex algorithm without extensive manual coding. Manual coding का मतलब एक एक वेरिएबल को देखना पड़ेगा। सही है ना। तो इस तरीके से ये है। तो सिंप्लीफाइड कोड में क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोग जो है जो है वो इफ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज चेंजेस, स्टोरिंग द डेटा इन एन एरे अलाउ फॉर द यूज ऑफ लूप्स टू आइटरेट ओवर द एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू आइटरेट थ्रू द वैल्यूज इजीली इफ इट इज सिंप्लीफाइड कोड। ठीक है ना। अब तीसरा है ईज ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा सच एज सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्टरिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस एरे। सो ईज ऑफ मैनिपुलेशन भी आएगा आपके पास। ईज ऑफ मैनिपुलेशन भी आ रहा है और मेमोरी एफिशिएंसी भी। अब इसके बाद हम इसमें एक और भी शामिल कर सकते हैं, मेमोरी एफिशिएंसी।
सो मेमोरी एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि arrays allow for efficient allocation of memory space when variables are declared individually. Managing memory can become more complex, especially if the data set size changes over the time. Scalability बढ़ती है. Arrays being a single contiguous block of memory optimize the use of space and can be dynamically allocated in memory programming environment. ठीक है, तो आप इसके अंदर अगर इतना भी लिख देंगे कि ये सिंप्लीफाइड कोड होता है और इसमें पॉसिबल होगा कि हम जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर एक ही लूप के अंदर चले जाएं, मतलब इट इज पॉसिबल टू आइटरेट थ्रू द वैल्यूज और वी यूज अ लूप, तो ये भी काफी होगा, इसमें भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन समरी, यूजिंग एन एरे enhances code manageability, supports scalability, simplifies data manipulation, looping through it, and optimize memory usage, making it superior choice for handling collections of data in an array। अच्छा, अब आ जाए, अगला पार्ट है। अगला जो पार्ट है वो हमारा है कि द रिक्वायरमेंट चेंजेस, एरे डेटा नीड्स टू होल्ड 120 एलिमेंट्स। अब देखें, ये वो स्केलेबिलिटी वाली बात है। एंड ईच वैल्यू में इंक्लूड अ डेसिमल प्लेस, राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द मॉडिफाइड एरे। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड एरे को हम किस तरीके से करेंगे, मतलब हम डिक्लेरेशन ही करनी है ना, तो हम यहां पर सिंपल से डिक्लेरेशन लिख देते हैं कि डिक्लेयर करो, एरे का क्या नाम है, डेटा। सिंटैक्स कहता है आगे कोलन लगाओ, फिर लिखो एरे, फिर बताओ कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है 120 तक। ठीक है ना, और ऑफ क्या है, रियल, क्योंकि अब वो पॉइंट बन गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरीके से चलता है। अच्छा, अब देखें यहां पर जो सिंटैक्सेस है ना, वो सिंटैक्सेस जरूरी है आपके लिए कि आप जो हैं वो उन सिंटैक्सेस को ना फॉलो करें जो आपके पास सिस्टम में आपकी आसानी के लिए सिंटैक्सेस हैं, जो आपने पढ़े हैं वही सिंटैक्सेस आप फॉलो करेंगे। और कोशिश करें कि ये वाला जो सिंटैक्स जो भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ इसी को फॉलो किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब अगला पार्ट हम देखते हैं। अगला पार्ट ये है कि the diagram represents a queue abstract data type. The organization of this queue may be summarized as follow. द फ्रंट ऑफ क्यू, आपको पता है कि क्यू जो है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरह से होता है जैसे एक टनल है, तो ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यहां से आप एंटर हो रहे हैं और यहां से आप बाहर आ रहे हैं, तो ये फ्रंट है, और ये जो है वो फ्रंट ऑफ द क्यू है, जहां से हम इसको निकालेंगे, और ये हमारे पास एंड ऑफ द क्यू है, यानी कि बैक। बैक से हम एनक्यू करते हैं, और फ्रंट से हमारे पास डीक्यू होता है। ठीक है,
ठीक है, फ्रंट से हमारे पास जो है वो डी क्यू होता है, यानी कि डिलीट होता है आइटम, और एन क्यू जो है हमारे पास यहाँ से ऐड होता है, या इंसर्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो है हम आगे चलते हैं। द फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डेटा आइटम एडेड। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब हमारे पास फ्रंट ये है, तो फ्रंट इसका मतलब है पहले D3 फर्स्ट आया होगा तो ये फर्स्ट रिमूव होगा, फिर फ्रंट हमारे पास नीचे आ जाएगा, फिर D4 होगा, फिर D1, फिर D2, फिर D5। जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाएंगे उसका मतलब है हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है। अच्छा, द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 वेरिएबल्स एंड वन डी array of 8 elements as shown. The variable number of items stores the number of item in the queue. The pointer variable stores indices, index numbers of the array. Complete the diagram to represent the state of queue as shown above. अच्छा, अब आप देखें फ्रंट ऑफ द क्यू जो है वो हमारे पास जो है वो होगा ये, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये 2 है, 2 पे फ्रंट ऑफ द क्यू है, और एंड ऑफ द क्यू 6 पे है। तो फ्रंट ऑफ द क्यू जो है वो 2 पे है, एंड ऑफ द क्यू 6 पे है। नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमारे पास क्यू के अंदर 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, वो तो इन्होंने यहाँ पे पहले से लिख दी हुई हैं। तो अब आप जो है वो यहाँ पर इसको D3, D4, D1, D2 और D5 लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसके बाद आप आगे चलें। मॉड्यूल एड टू, अब देखें 6 मार्क्स का सवाल है। अब मॉड्यूल एड टू, मॉड्यूल का मतलब है या तो ये प्रोसीजर है या फंक्शन है। विल एड अ वैल्यू टू द क्यू बाय मैनिपुलेटिंग द एरे एंड वेरिएबल्स इन पार्ट ए। ठीक है, द क्यू इम्प्लीमेंटेशन इज सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, रैप अराउंड होता है, यानी कि जब आपके पास क्यू भर जाती है तो हम घूम के वापस दूसरी तरफ आ जाते हैं। और प्रोवाइडेड कि हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो क्यू की लेंथ से कम हो, तो हम फिर अपना फ्रंट पॉइंटर या जो एंड पॉइंटर होता है उसको हम रैप अराउंड करते हैं, मतलब वी ब्रिंग इट बैक टू द स्टार्ट। When pointers reach the end of the queue, they will wrap around to the beginning. Before a value can be added to the queue, it is necessary to check if the queue is not full. The algorithm to add the value to the queue is expressed in 6 steps. ठीक है ना? If number of items, अब आप देखें आपके पास टोटल कितनी जगह है, 8 एलिमेंट्स की जगह है, आपके पास 8 एलिमेंट्स की जगह है। सो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, to complete steps for add to module that adds a value to the circular queue based on the provided instructions जो यहाँ पर हैं,
and considering the behavior of a circular queue, the steps can be filled as if number of items is equal to 8, then jump to, अगर हमारे पास 8 है, अगर हम वहां चले जाते हैं, इज इक्वल टू 8, देन जंप टू स्टेप 6. दिस चेक्स इफ द क्यू इज फुल सिंस इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 8 आइटम्स एज मेंशन. ठीक है. अब आ जाते हैं इंक्रीमेंट. अब इंक्रीमेंट हमें क्या करना है? नम आइटम्स. सो नम आइटम्स को हम इंक्रीमेंट करेंगे, नम आइटम्स को नहीं, हम इंक्रीमेंट करेंगे एंड ऑफ क्यू को, क्योंकि एंड ऑफ क्यू से हमें जो है वो उठाना है ना, हमें तो एंड ऑफ क्यू से उठाना है. एंड ऑफ क्यू हमें ऐड करना है ना, तो हम एंड ऑफ क्यू को यहां से बेसिकली आगे लेकर आएंगे. तो हम यहां पे इंक्रीमेंट करेंगे एंड ऑफ क्यू को. सो अब हमने इंक्रीमेंट किया एंड ऑफ क्यू को. दिस इंक्रीजेस द पोजीशन कि जहां पर हमें जो है वो आइटम को ऐड करना है. लेकिन अगर ये ऐड होके अगर ये एंड ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास 9 हो जाता है, एंड ऑफ क्यू अगर हमारे पास 9 हो जाता है, कि हम लिखेंगे यहाँ पे इफ एंड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 9, यानी कि ये बाहर निकल गया, यानी कि यहां से ये आगे आ गया 9, तो इसका मतलब है कि ये तो 9 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना 9. तो हम इसको क्या करेंगे? रैप अराउंड कर देंगे. रैप अराउंड करके हम इसको कहाँ भेजेंगे? 1 पे, ताकि ये दोबारा ऊपर से शुरू कर दे. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे and set the end of queue. If end of queue is equal to 9, then set the end of queue to 1. अब हमें इंक्रीमेंट क्या करना है? अब हमें नंबर आइटम्स जो हैं वो इंक्रीमेंट करने हैं. अब हमने एक आइटम जो है उसको बढ़ा दिया है, अब हम बढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि हमने आगे हम चले गए तो ऑब्वियसली वो इंक्रीमेंट हो गया. अच्छा, सेट द एलिमेंट बोलेंगे, ऑब्वियसली सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स stored in at the index stored in to the being added. Set the element at the index stored in end of queue ही होगा, ऑब्वियसली यही हो सकता है, और क्या होगा? एंड ऑफ क्यू टू द वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे पास है. अब उस वैल्यू के लिए कोई इन्होंने नाम दिया है, द एल्गोरिथम एड्स अ वैल्यू, तो बस हम वैल्यू ही लिख देंगे. तो बेसिकली हुआ ये कि जब आपको एक आइटम ऐड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एंड ऑफ क्यू को आप आगे बढ़ाएंगे, 7 करेंगे, और 7 पे आप जो है वो नया आइटम ऐड कर देंगे. फिर आप एंड ऑफ क्यू को आगे बढ़ाएंगे, 8 कर देंगे और नया आइटम ऐड कर देंगे, और इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो बढ़ जाएंगे. उसके बाद आप दोबारा इसको आगे बढ़ाएंगे, 9 कर देंगे. अब क्योंकि 9 हो गया, तो 9 तो है ही नहीं, तो हम 9 से इसको वापस 1 कर देंगे, और 1 पे जाके हम 1 पे जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा के 8 करेंगे, और नया आइटम हम यहां पर ऐड कर देंगे. दैट इज हाउ इट विल वर्क. ओके. अब जब ये चलेगा, तो क्योंकि ये ऑलरेडी 8 हो चुके हैं, तो ये वापस जंप करके 6 पे आएगा, और 6 पे आके ये स्टॉप हो जाएगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. नाउ अब प्रोसीजर रैंडम लिस्ट. अब आपको याद है रैंडम का फंक्शन उसने क्या बताया था? उसने कहा था कि अगर आप रैंडम का फंक्शन यूज करते हैं और इसमें आप x लिखते हैं, तो ये आपको 0 से x-1 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा,
जो कि रियल होगा, जो हमने शुरू में इंसर्ट पढ़ा था उसके अंदर ही इस तरीके से उसने बताया था कि आप जो भी रैंडम के फंक्शन को कॉल करेंगे। बेटा इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए करके दिखाया है ना कि आप हो सकता है मोमिन, अब आप समझ गए ना, जब मैंने आपको यहाँ पर ये करके दिखाया तो इसलिए करके दिखाया था कि आप इसको समझ जाएं। यस मुनिम, वी कैन राइट ग्रेटर देन 8। अच्छा, तो अच्छा अब आप देखें, हम आगे चलते हैं। A procedure random list will output a sequence of 25 random integers where each integer is larger than the previous one। अब हमें सिर्फ यहां पर यह काम करना है कि हम एक एरे सा बना लेंगे और उसमें जो है फिर हम ये रखेंगे कि प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो उसमें हम डालते चले जाएंगे ताकि हमें पता चले कि प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है। मतलब वी नीड टू जनरेट, हम ये कर सकते हैं कि हम जनरेट करते जाएं और पिछले से चेक करते चले जाएं कि पिछली वैल्यू से। तो अ प्रोसीजर रैंडम लिस्ट will output sequence of 25 random integers where each integer is larger than the previous one। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम इस रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। काफी सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। अब यहां पे देखो, ये इंटीजर भी कह रहा है, इंटीजर भी कह रहा है और रैंडम जो है वो हमें रियल देता है, तो इसका मतलब है इस पे हमें इंटीजर का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रैंडम का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉरी, इंटीजर का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। राइट सूडो कोड फॉर प्रोसीजर रैंडम लिस्ट। अच्छा, लार्जर देन द प्रीवियस वन। अच्छा, ये प्रीवियस वैल्यूज नहीं है, ये प्रीवियस वन कह रहा है, यानी कि जस्ट द प्रीवियस वन। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक वैल्यू, पिछली वैल्यू को देखना पड़ेगा, हमें पूरा एरे में सारी वैल्यूज को नहीं देखना, सिर्फ एक पिछली वैल्यू को देखना है। तो हम बनाते हैं यहां पर प्रोसीजर रैंडम लिस्ट। अच्छा, अब हम डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर, डिक्लेयर प्रीवियस नंबर, और जो हम नंबर जनरेट करेंगे उसका नाम हम रख देते हैं रैंडम नंबर। ठीक है, और इन दोनों को हम करेंगे एज इंटीजर। डिक्लेरेशन के बगैर बेटे काम नहीं चलेगा। और प्रीवियस नंबर को हम इनिशियली जो है ना वो कर देंगे 0। प्रीवियस नंबर को हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे। अब हमें लूप चलाना है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 25। हमें सिर्फ एक प्रीवियस वैल्यू से करना है। अच्छा, अब हम यहां पर अगर अब हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, हम रिपीट का लूप लगाएंगे क्योंकि हमें ना हर बार पिछले वाले से ज्यादा करना है। अब हम अज्यूमिंग रैंडम जनरेट्स अ रियल नंबर अप टू 100। अब लेट्स से 100 हम कर लेते हैं कि वो जो भी नंबर हम जनरेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इसने बताया नहीं है कि जो नंबर हमें जनरेट करने हैं वो कहाँ से कहाँ तक के करने हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो अम, कोई भी एक जनरेट कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रिपीट के अंदर अज्यूमिंग रैंडम जनरेट्स अ रियल नंबर अप टू 100, और इसके बाद जो है वो हम स्केल करेंगे एंड कन्वर्ट टू इंटीजर करने के बाद फिर हम उसको एडिंग 1 टू एंश्योर दैट द नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज द लार्जर। ठीक है ना, तो हम उसके अंदर एक 1 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम खुद ब खुद ही बढ़ा देंगे उसको। अज्यूमिंग रैंडम generates a real number up to 100, scale and convert it to integer, adding 1 to ensure the next number is always larger। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर रैंडम नंबर लिखते हैं। रैंडम नंबर इज इक्वल टू, अब हमने सबसे पहले रैंडम का फंक्शन कॉल किया, उसको हमने भेज दिया 100। सही है। और उसके बाद उस पे अप्लाई कर दिया इंटीजर का फंक्शन। इंटीजर का फंक्शन कर दिया अप्लाई, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसमें ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर। बस कुछ भी ऐसा करना है कि ये पिछले नंबर से बड़ा हो जाए। हो सकता है ये 0 बन जाए। अगर 0 बन जाएगा तो प्रीवियस नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो हमने उसमें +1 भी डाल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीट में हमने इसको लगा दिया ये। ठीक है, अब अंटिल में देखें हम क्या लिखेंगे। अंटिल रैंडम नंबर is greater than previous number। ठीक है, until random number is greater than previous number। सही है। और उसके बाद हम बाहर निकल के इसको आउटपुट कर देते हैं। आउटपुट रैंडम नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम अब प्रीवियस नंबर को जो है, अब हमारा यही रैंडम नंबर नया बन गया ना, अब हम इसको प्रीवियस नंबर बना देंगे ताकि अगला नंबर इससे आगे का जनरेट हो। सो अब हम लिखेंगे प्रीवियस नंबर प्रीवियस नंबर इज इक्वल टू रैंडम नंबर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। तो अब हमने प्रीवियस नंबर को रैंडम नंबर के बराबर कर दिया। बेटा फॉर लूप हमने इसलिए चलाया है कि हम 25 नंबर जनरेट करेंगे। रिपीट हमने इसलिए रखा है कि जो नंबर अभी जनरेट हो रहा है वो पिछले नंबर से बड़ा होना चाहिए। सो एवरी नंबर दैट इज जनरेटिंग
should be greater than the previous number. That is one thing that will be achieved by repeat, and we need to generate 25 total numbers. Get the idea? That is how it works. और इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट. सर रैंडम 100 से भी डिफॉल्ट इंटीजर नहीं आएगा क्या? तो नहीं ना. इंटीजर रैंडम का नंबर तो आपको भी जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जनरेट ही रियल नंबर करता है, इसलिए हमें इंटीजर लगाना पड़ेगा. और वो जीरो भी जनरेट कर सकता है, तो इसलिए हमने +1 भी किया हुआ है. ठीक है सर. इफ वी आर यूजिंग रैंडम प्लस प्रीवियस इट विल बी ग्रेटर फॉर श्योर. नहीं बेटे, अगर रैंडम नंबर जीरो जनरेट हो गया, क्योंकि जीरो से जनरेट होता है, तो फिर वो प्रीवियस के बराबर ही हो जाएगा. हमाद, इसलिए हमने +1 लिखा है, नॉट फॉर श्योर. हाँ हाँ, +1 इसीलिए लगाया है कि अगर जीरो भी जनरेट हो जाए तो +1 की वजह से वो फॉर श्योर आगे बढ़ जाए. हाँ, आप कह सकते हैं, कह सकते हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो फॉर श्योर प्रीवियस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो हमें रिपीट की जरूरत नहीं है. तो हम लेट्स से हम अगर हम चाहें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा सकते हैं बस. बिल्कुल बिल्कुल हटा सकते हैं. तो बेटा +1 किया है ना हमजा, उससे फिर क्या होगा? +1 करने से वो प्रीवियस नंबर से बड़ा हो जाएगा ना. अच्छा जी, तो इसके बाद एंड प्रोसीजर हो गया. आप चाहें तो इसमें से जिन पार्ट्स को मैंने स्टार लगाया उसको आप हटा दें, क्योंकि टेक्निकली उनकी जरूरत इसलिए नहीं कि हम +1 खुद ही कर रहे हैं. ऑल राइट. सो नेक्स्ट पार्ट बी, प्रोसीजर रैंडम लिस्ट इज मॉडिफाइड. ठीक है, प्रोसीजर रैंडम लिस्ट इज मॉडिफाइड so that the random numbers are also written into 1D array result. A new module is written to confirm that the numbers in the array are in ascending order. This module contains an if statement that performs a comparison between the elements. If result of x plus 1 is equal to x, or result of x is greater than x plus 1, then sequence is equal to false. And if write a simplified version of the conditional clause. अब simplified version जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वो बहुत आसान होगा. आप समझ रहे हैं यहाँ पे हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें लिखना है कि if result x is greater than result x plus 1, अगले से हम चेक करेंगे इसको, then अगर हमारा रिजल्ट अगले से बड़ा है तो सीक्वेंस में तो नहीं हुआ ना, तो हम यहां पे लिख देंगे सीक्वेंस इज इक्वल टू फॉल्स. सही है. तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? द सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि हमारे पास यहां पर है, द सिंप्लीफाइड वर्जन of the conditional clause that checks if the element in the array result are in ascending order could focus on verifying if each element is greater than or equal to the next one, which contradicts yahan par the condition for an ascending order. The original clause checks for the equality or if an element is greater than the subsequent one, which would indicate that the sequence is not strictly increasing. Given this, a simplified version could directly check for the condition that violates the ascending order sequence, which is if any element is greater than its successor. However, the original condition already expresses the direct logic needed to set sequence to false if the sequence is not in ascending order. For simplification, we might just remove the equality check since it is redundant. Equality check ये वाला जो है, it is redundant, इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है.
For simplification, we might just remove the equality check since it's redundant in the context of identifying the strictly increasing sequence. So this is our answer. ठीक है, तो अभी जो आंसर है, this simplification assumes that the sequence should always be strictly increasing. Each element should be less than the next one. If an equal condition should not invalidate the sequence, then the original conditional already performs the minimum necessary checks efficiently. ठीक है ना? So this is a simple thing. नॉट इक्वल टू, बेटा इक्वालिटी तो हमें उठानी नहीं है ना, हमें तो सिर्फ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है। या अगर आप इसको स्ट्रिक्टली देखना चाहते हैं, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो फिर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मेरा ख्याल है कि बराबर को भी आप यहाँ पे कंडीशन को मिला के भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। चले जी, अगला पार्ट। अब देखें, यहां पर एक हमें एल्गोरिथम दिया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे, ग्लोबल 1D array of integers contain 4 elements which are assigned values as shown. mix 1 में 4 है, mix 2 में 2 है, mix 3 में 3 है, mix 4 में 5 है। A procedure process manipulates the values in the array. The procedure is written in the pseudocode as follows. Procedure process starts यहाँ से, जो भी हमें यहाँ पे दिया जाएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वैल्यू, डिक्लेयर वैल्यू, इंडेक्स, टोटल और इंटीजर। तो इंडेक्स जो है वो हमने स्टार्ट से डाल दिया और टोटल हमने 0 डाल दिया। तो ये मतलब 2 आता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 आता है तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, while total is less than 20, value is equal to mix। हमारे पास जो एरे है मिक्स की इंडेक्स से होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो हम ये टोटल करते जाएंगे। अगर इंडेक्स लेस देन 4 है तो हम इंडेक्स जो है माई इंडेक्स प्लस 1, तो हम अगले को उसमें मिक्स इंडेक्स इज इक्वल टू मिक्स इंडेक्स प्लस 1, तो अगले को अभी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। एल्स अगर लेस देन 4 नहीं है तो फिर ये होगा कि इंडेक्स प्लस मिक्स 1, पहले वाले को उसमें ऐड कर देंगे, जो इंडेक्स होगी उसके अंदर पहले वाले को ऐड कर देंगे। और उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू मोड 4 प्लस 1 एंड वाइल। अब ये चलता रहेगा जब तक कि टोटल लेस देन 0 है। मिक्स, जब हम एंड वाइल से बाहर निकलेंगे तो मिक्स 1 जो होगा वो टोटल इंटू इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये बड़ा अजीब सा डिफरेंट सा वो है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। अब हम इसके देखते हैं, यहाँ पर कॉल प्रोसेस 2 के साथ किया गया है। तो इंडेक्स, वैल्यू, टोटल, मिक्स 1, मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको कि आइट्रेशन नंबर कौन सा है, इंडेक्स कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, टोटल कितना हो गया, मिक्स 1,
मिक्स टू, मिक्स थ्री और मिक्स फोर। ये आ गया। ठीक है। आइटरेशन इंडेक्स वैल्यू टोटल मिक्स वन मिक्स टू मिक्स थ्री मिक्स फोर। अच्छा, अब शुरू में तो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उसके अंदर हमारे पास जो है मिक्स वन फोर फाइव थ्री फाइव क्या है फोर। अब हमारे पास तरीके से आ रहा है कि शुरू में तो मिक्स वन जो है वो है फोर, फिर टू, फिर थ्री, फिर फाइव। ठीक है, ये हमारे पास शुरू में वैल्यू है। अच्छा, अब ये कहता है कि यहाँ पर आप प्रोसेस को टू के साथ शुरू करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली आइट्रेशन लगी तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो स्टार्ट के बराबर हो गई। सही है, जो इंडेक्स जो है वो स्टार्ट के बराबर हो गई। और स्टार्ट में हमारे पास क्या आया, टू। बल्कि अभी आइट्रेशन की तरफ नहीं जाते, इंडेक्स आया है हमारे पास टू, स्टार्ट हमारे पास आ गया है टू। ठीक है, इंडेक्स हमारे स्टार्ट के बराबर हो गया, टोटल हमारा हो गया जीरो। इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, अब आ गया वाइल टोटल इज लेस देन 20, तो वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स इंडेक्स। तो अब इंडेक्स हमारे पास टू है, तो वैल्यू हमारे पास टू में क्या हो गई, टू। टू में हमारे पास टू थी, तो हम इसको टू के बराबर कर देंगे। टू के बराबर कर देंगे हम इसको। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारी आइट्रेशन नंबर वन चल रही है इस वक्त। वैल्यू टू के बराबर हो गई। अब टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, ये भी टोटल भी टू हो गया। इफ इंडेक्स इज लेस देन फोर, यस इट इज लेस देन फोर, यस इट इज लेस देन फोर। तो फिर अब मिक्स इंडेक्स यानी कि एम टू इज इक्वल टू एम टू प्लस एम थ्री। तो एम टू प्लस एम थ्री क्या हो जाएगा, फाइव। तो एम टू हमारा क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, एम टू हमारा फाइव हो गया, और एल्स चलेगा नहीं। इंडेक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो इंडेक्स होगी, ये हम लूप के अंदर ही हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू, ये चला, इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास, टू, टू मॉड फोर। तो हमारे पास क्या बचेगा, टू मॉड फोर हमारे पास बचेगा, टू मॉड फोर प्लस वन। तो ये हमारे पास बचेगा इंडेक्स के अंदर थ्री। वैल्यू, वैल्यू टू है, मॉड फोर है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फोर हमारे पास जो होता है, फोर जो टू है, टू को हम डिवाइड करेंगे फोर से तो जीरो होगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये 0.5 होगा ना टोटल आंसर हमारा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मॉड के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 0.5। 0.5 बन रहा है। सही है, तो मॉड्यूलो मेथड के अंदर टू मॉड फोर यूजिंग मॉड्यूलो मेथड हमारे पास टू डिवाइड बाय 4.5 हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारे पास जो है
इंडेक्स जो है ये हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है ना? टू मॉड 4 जो होगा वो हमारे पास होगा 2। 2 मॉड 4 जो है हमारे पास होगा 2। ठीक है ना? तो 2 mod 4 is equal to 2 because the modulo operation gives the remainder of dividing the first number by the second number। ठीक है ना? तो अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, और सेकंड नंबर हमारे पास 4 है। अच्छा, in this case when we divide 2 by 4 the quotient is 0 with the remainder of 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब हमारे पास का क्या मतलब हुआ कि जो 2 mod 4 हो गया वो हमारे पास हो गया 2। अब ये आंसर इसका क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, 2400 हो जाएगा। 2 हमारे पास बचेगा तो 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3। तो हमारे पास इंडेक्स हो गई हमारे पास अब 3। बेटा ये है मॉड, ये मॉड से निकलेगा रिमाइंडर, ये डिफ से निकलेगा। ठीक है। सो अब हमारे पास वापस हम ऊपर आते हैं। अब हमारे पास सेकंड आइटरेशन शुरू होती है। अब अभी हमारे पास टोटल जो है वो सिर्फ 2 है। तो अब हम वापस वाइल पे आते हैं। टोटल हमारा <20 है तो ये चलता रहेगा। अब वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स। अब हमारे पास इंडेक्स है 3, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है, 1322, और ये 4 है, 4535। अब हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स। तो हमारे पास ये आइटरेशन नंबर 2 आ गई। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो बन गई 3। सही है। तो इंडेक्स हमारे पास क्योंकि 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स ऑफ 3 के अंदर 3 पड़ा हुआ है, इस वजह से हमारे पास वैल्यू बन गई 3। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास 3 है तो टोटल हमारे पास हो गया 5। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या हो गया, 5। अब इसके बाद हमारे पास आ गया इंडेक्स इज लेस देन 4। तो यस, इंडेक्स इज लेस देन 4। तो मिक्स इंडेक्स यानी कि मिक्स 3 जो होगा वो हो जाएगा मिक्स 3 प्लस मिक्स 4। तो मिक्स 3 जो है वो 3 है और मिक्स 4 जो है वो 5 है। तो ये दोनों मिला के मिक्स 3 जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद इंडेक्स जो है वो वैल्यू आपके पास अब क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है आपके पास 3। 3 mod 4। तो इसमें भी हमारे पास जो मॉड होगा वो 3 हो जाएगा। 3 + 1 जो हो गया वो हमारे पास 4 हो गया। तो अब हमारे पास जो इंडेक्स है वो 3 के बाद आ गई 4। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 में अ, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये सब बाकी वैसे का वैसे ही रह गया। ठीक है, इंडेक्स भी हमने अपडेट कर दी। और इसके बाद अब हम ये सारी वैल्यूज दोबारा हम वाइल के ऊपर आ गए। अब हमारे पास तीसरा लूप लगा है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 6 लूप्स तक चलेगा। अब हमारे पास तीसरा लूप लगा है। इस तीसरे लूप में हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी 5। वैल्यू हमारे पास 5 बन जाएगी क्योंकि 4 पे इंडेक्स जो है वो 5 है। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 बन गई तो टोटल हमारा हो गया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गया 10। इफ इंडेक्स इज लेस देन 4 नहीं है, ये तो इक्वल टू 4 है। तो अब हम इधर आ जाएंगे।
अब हमारे पास यहाँ चलेगा, इंडेक्स का मतलब हो गया 4, अब 4 चेंज होने जा रहा है, तो 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 1 के ऊपर 4 रखा हुआ है, तो हमारे पास जो फोर्थ इंडेक्स है वो अब 5, पहले 5 था, और 1 पे क्या रखा हुआ है, 4, और 5 और 4 मिलके क्या बन जाते हैं, 9। ठीक है, फिर इंडेक्स जो होगी वो वैल्यू, यानी कि 5 मॉड 4 और 1, अब ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस वक्त क्या है, वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 मॉड 4 प्लस 1 जो है, अब 5 मॉड 4, यहाँ पे 1 आया, और प्लस 1 जो होगा हमारे पास 2 बन जाएगा, तो इंडेक्स अब हमारे पास क्या बन गया, 2। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स 2 बन गया, और अब हमारे पास ये दोबारा एंड वाइल हो गया, तो अब ये जब एंड वाइल हो जाता है तो अब हमारे पास दोबारा वाइल शुरू हो रहा है। अब वाइल, अब हमारे पास जो है वो 4 5 8, अब हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 शुरू हो रहा है, तो सॉरी आइट्रेशन नंबर 4 शुरू हो रहा है, इंडेक्स इस वक्त हमारे पास है 2। तो अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है, वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, तो मिक्स ऑफ 2, क्या बना, 2 के ऊपर हमारे पास है 5 इस वक्त, तो हमारे पास जो वैल्यू है इंडेक्स 4 पे, मिक्स ऑफ 2 जो है वो हमारे पास, मिक्स ऑफ इंडेक्स, तो मिक्स ऑफ 2, तो ये हमारे पास बन रहा है 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, वैल्यू इज इक्वल टू मिक्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स इस वक्त हमारे पास 2 है, तो 2 के ऊपर हमारे पास 5 रखा हुआ है, तो वैल्यू हमारे पास हो गई 5। ये हमारे पास देखें, इंडेक्स जो है वो है 2, और मिक्स ऑफ 2 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, टोटल, तो टोटल हो जाएगा टोटल प्लस वैल्यू, तो 5 + 10 हमारे पास हो जाएगा ये 15। ठीक है, ये 15 हो गया। इसके बाद हम आ गए, इफ इंडेक्स इज लेस देन, यस इट इज लेस देन, तो इंडेक्स जो है वो 2 है, तो 2 के ऊपर रखा हुआ है 5, और 5 में फिर 6 को हम 3 को हम ऐड कर देंगे, तो 5 और 8, 9 10 11 12 13, तो ये अब हमारे पास टोटल जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, इफ इट इज लेस देन 4, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो मिक्स इंडेक्स जो है, इंडेक्स इस वक्त 2 है, तो 2 के ऊपर हम यहाँ पर हैं, तो 2 जो होगा क्या होगा, मिक्स इंडेक्स, यानी कि 2 + 3, 8 और 5 13 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आप आ गए इधर, इंडेक्स जो होगी अब होगी वैल्यू, यानी कि वैल्यू हमारे पास है 5 मॉड 4, तो ये हमारे पास 1 बचा, 1 के 1 2 हो गया, तो हमारे पास ये 2 का 2 ही रहा, तो इंडेक्स में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इंडेक्स में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, और बाकी जो वैल्यूज हैं हमारी अपनी जगह पर सेम रही, 4 8 9। अब हमारे पास फिफ्थ आइटरेशन है, इंडेक्स हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए वापस वैल्यू के ऊपर, वैल्यू जो है वो मिक्स ऑफ इंडेक्स के बराबर होगी, इंडेक्स 13 है, तो हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो उस वक्त हो गई 13। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया टोटल, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, तो 15 और 13 जो हो गए वो आपके पास हो गए 28, 28 हो गए। इसके बाद इज इंडेक्स लेस देन 4, यस इट इज लेस देन 4, इंडेक्स इज 2, सो मिक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू मिक्स ऑफ 2 + 3, सो मिक्स ऑफ 2 13 और प्लस 3 8, तो 13 and 8 is 21, so it is now 21।
अच्छा जी, तो अब आप आ जाएं यहां पर। इंडेक्स, इंडेक्स जो है वैल्यू, वैल्यू आपके पास है 13, 13 को आपने 4 से किया, 3 × 12, आपके पास 1 बचा, 1 + 1 1। तो ये अब आपके पास दोबारा इंडेक्स जो है वो 2 ही कैलकुलेट हो गई है। अच्छा जी, अभी तक आपका जो टोटल है वो आपका 15 था, अब ये 28 हो चुका है। टोटल आपका जो है वो क्या हो चुका है, 28। तो अब आप जब यहां से एंड वाइल से वापस जाएंगे, एंड वाइल से जब आप वापस जाएंगे तो टोटल इज लेस देन 20 नहीं है, नाउ इट इज 28, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो अब आप आ जाएंगे बाहर। मिक्स 1 इज इक्वल टू टोटल इंटू इंडेक्स, तो इंडेक्स आपकी 2 है, इंडेक्स आपकी 2 है, टोटल आपका 28 है। तो 28 × 2 क्या हो गया, 56। तो मिक्स 1 आपका जो यहाँ पे 4 था, ये आपका हो जाएगा 56। So that's it. This is the procedure. It was bit tiring. कॉल 2 के साथ चल रहा है तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। हमाद, अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे ना तो वो प्रोग्रेसिव मार्किंग होती है। अगर आपसे एक गलती हो गई तो बाकी सारे, तो आप देखिएगा कि वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसके कितने मार्क्स हैं, इसके मार्क्स हैं टोटल 6। तो 6 मार्क्स के लिए तो 20 जो हमारे पास ये है, 1 मार्क आपको मिलेगा इसका, ठीक है। फिर आपको मिलेगा 3225 का, इसका 2 मार्क्स, ठीक है। फिर आपको मिलेगा 4358 का 3 मार्क्स। फिर आपको मिलेगा 25109 का 4 मार्क्स। फिर आपको मिलेगा 251513, 251513 5 मार्क्स। और फिर आपको जो है वो आखिरी वाले के, इसके और इसके 1 मार्क मिलेगा, 6 मार्क्स। तो अगर आपने एक भी गलती ऊपर की होगी तो प्रोग्रेशन में वो गलती फिर आगे मार्क्स को खराब करेगी। ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि किसके कितने मार्क्स मिलेंगे, तो वो बेसिकली मैंने मार्किंग स्कीम से आपको बताया, ठीक है। अच्छा, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये एक डिफरेंट उसमें था। तो आप एक काम ये करेंगे कि जब लूप चेंज होगा तो फिर आप अगली लाइन से लिखेंगे। अच्छा जी, तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है कि अ फंक्शन टेस्ट नंबर, a function test number will take 6-digit string as a parameter. The function will test whether the string meets certain condition and will return an integer value as follows. Return 1, the last 3 digits are the same but non-zero. Last 3 digits are the same but non-zero. The last 3 digits are zeros, तो ये return 2 करेगा। If the first 3 digits and last 3 digits are the same, 410 410, तो ये 3 return कर देगा। The function will return the highest possible value for the given string, ठीक है। The function will return the highest possible value for the given string। मतलब इसमें 1 2 3 में से ये इन तीनों कंडीशंस को चेक करेगा, इनमें से जो भी कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी फिर उसमें से ये निकालेगा वैल्यू। तो उसमें जो भी इन तीनों में से बेस्ट होगा वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का सवाल है, ये बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें सूडो कोड बनाना है फॉर फंक्शन टेस्ट नंबर, अज्यूम दैट द पैरामीटर इज वैलिड। मतलब जो भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इनमें से ही कोई एक होगा। तो द लास्ट 3 digits आर द सेम। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। सही है। तो हम तो क्योंकि वो कहते हैं ना फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 3 इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हम पहले 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, फिर 1 के लिए करेंगे। ऑलराइट। तो
अब हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं कि फंक्शन ठीक है। अब हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे उसको। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर का नाम भी कुछ भी रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अब फंक्शन टेस्ट नम, और इसका हम नाम रखते हैं नम स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, एंड इट रिटर्न्स इंटीजर। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 में क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट आर द सेम। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर फर्स्ट पास, फर्स्ट पार्ट कॉमा सेकंड पार्ट एज स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम पहली चीज के लिए इसको चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहां पे लिखा फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ नम स्ट्रिंग कॉमा 3, और सेकंड पार्ट इज इक्वल टू राइट ऑफ नम स्ट्रिंग कॉमा 3। अब हम चेक करेंगे कि इफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, देन बस यहीं से आप कर दें रिटर्न 3। जब रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर आगे कुछ नहीं चलता। सही है। जब रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाती है तो इट डज नॉट गो फर्दर। ठीक है। तो बस आप यहां से रिटर्न कर देंगे। अब आ जाएं दूसरे वाले पे, 2 के लिए। 2 के लिए क्या है, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। तो अब हम यहां पे दूसरा चेक लगाएंगे, इफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 0 0 0। सही है। देन रिटर्न 2। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या है, 1 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स आर द सेम बट नॉन जीरो। अब आपको याद है वो नम टू स्ट्रिंग थिंग। तो अब आप यहां पे लिखेंगे कि इफ सेकंड, if last 3 digits are the same but non-zero, if if mid of second part comma 1 is equal to mid of second part 2 1, and mid of second part 1 1 is equal to mid of second part 3 1। अगर ये तीनों बराबर हैं, ठीक है ना, मतलब पहला पार्ट लिया उसको 2 के बराबर है, एंड लगाया पहला पार्ट 3 के बराबर है, इसका मतलब तीनों सेम हो गए। अब हम जो एंड लगाएंगे इसमें हम लिखेंगे नम टू स्ट्रिंग
सेकेंड पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, ये जो हमने सेकंड पार्ट उठाया था, ये जो हमने सेकंड पार्ट उठाया था, राइट से 3 वर्ड लिए थे, उसने कहा है कि अगर राइट से 3 वर्ड 3 कैरेक्टर सेम हो तो हमने इनको चेक कर लिया कि सेकंड पार्ट का पहला कैरेक्टर जो है वो सेकंड पार्ट के दूसरे कैरेक्टर के बराबर हो, और पहला जो है वो तीसरे के बराबर भी हो, और अगर हम उसको सेकंड पार्ट को नंबर में मतलब कन्वर्ट कर दें तो वो 0 ना हो, क्योंकि इसने यही बोला था द लास्ट 3 डिजिट्स आर द सेम बट नॉन जीरो। अब नॉन जीरो से इसने ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा, नॉन जीरो लिखा है, ठीक है ना, नॉन जीरो लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता जो आपने लिखा है ना, हम इफ डिविजिबल बाय 111 देन दे आर इक्वल, ना 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 ना, ये कर सकते हैं लेकिन ये फिर आपके एग्जामिनर के एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, देन मेक इट सिंपल बेटे, रिटर्न 1। ठीक है, अब ये हो गया एंड फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। तो पहले हमने 3 के लिए देखा, 3 अगर रिटर्न हो जाता है ना तो फिर कुछ और रिटर्न नहीं होता, बस जैसे ही रिटर्न की स्टेटमेंट आती है, तो रिटर्न की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है रिटर्न की, उसके बाद फिर एंड फंक्शन पे पहुंच जाता है। रयान, आई एम ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। तो ये है, अब आपको इसके मार्क्स मिल गए जो भी मिलने थे, ये बेसिकली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था। अब आप यहाँ पे आ जाएं, स्ट्रक्चर चार्ट शोज द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ डायग्राम। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट शोज द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अब एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, वो एक लूप में फॉर का होगा, वाइल का होगा, रिपीट का होगा, इन तीनों को कॉल कर रहा है, सब रूटीन y1 को, फिर y2 को, फिर y3 को, फिर बार बार कॉल कर रहा है। देखें ये जब ये लूप लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये फिर ये फिर ये जो ऑर्डर होता है वर्क इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक पैरामीटर पास हो रहा है बाय वेल, यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है बाय रेफ, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। ये फंक्शन है क्योंकि रिटर्न कर रहा है, ये भी प्रोसीजर है, ये भी प्रोसीजर है, ये फंक्शन है क्योंकि रिटर्न कर रहा है, और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या है, फ्लैग, क्योंकि इसके ऊपर जो सर्कल है वो फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप में कॉल हो रहा है, सही है, कॉल्स इन लूप हो रहा है। ये बाय वैल है, ये बाय रेफ है, ये बाय वैल है, और ये जो है वो फ्लैग है जो कि रिटर्न हो रहा है, और फ्लैग का मतलब होता है बूलियन, यस नो रिटर्न हो रहा है। अब क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये प्रोसीजर है, ये भी प्रोसीजर है, और ये क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो ये फंक्शन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कर्व्ड एरो सिंबल विच बिगिंस एंड एंड्स एट मॉड्यूल A1। सही है, तो अब आपके पास जो है द कर्व्ड एरो सिंबल दैट बिगिंस, ये वाले इसकी बात हो रही है, द कर्व्ड एरो सिंबल दैट बिगिंस एंड एंड्स एट मॉड्यूल A is structure chart typically represents recursion। सही है, recursion यानी कि loop within the module। This means that module A might call all these modules repeatedly। सही है ना, all these modules repeatedly। अच्छा, क्लियर हो गई बात।
अच्छा, तो हम इसमें क्या लिखें? अब हम इसके अंदर जो भी आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इसमें सिर्फ ये लिख दें कि इट इज कॉलिंग मॉड्यूल ए। मतलब आप मॉड्यूल ए भी लिख सकते हैं, मॉड्यूल ए लिखें बल्कि। मॉड्यूल ए इज कॉलिंग सब y1 कॉमा सब y2 एंड सब 9 इन अ लूप। इसका ये मतलब है, बस दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, इन अ लूप। और अगर आप आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिपीटेडली। वैसे लूप में रिपीटेडली लिखना बेवकूफ़ी है। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया? अगला पार्ट आ जाए। द स्ट्रक्चर चार्ट शो सब 9 इज अ फंक्शन। सही है ना? ये हमें पता चला था कि सब 9 जो है वो एक फंक्शन है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू। ठीक है ना? तो द स्ट्रक्चर चार्ट शोज दैट सब 9 इज अ फंक्शन। A Boolean value is returned by sub9 for processing by module A. The original parameter RA is type of integer and RB is type of string. तो ये जो है वो इंटीजर है और ये जो है वो स्ट्रिंग है, और ये तो हमें पता है कि बूलियन है। अच्छा, रिकॉर्ड टाइप। राफे, यू आर हियर? अब्दुल राफे? हाँ, अब देखें ये मॉड्यूल आ रहा है। अच्छा, अब देखें राइट्स। देखें रिकॉर्ड टाइप। देखें टाइप क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड टाइप का मतलब ये है कि ऐसी टाइप जो कि इंट्रिंसिक नहीं है, बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं है। ठीक है? हमें हमारी जो जरूरत पड़ रही है ऐसी डेटा टाइप की पड़ रही है जिसके अंदर मिक्स डेटा टाइप्स हैं, और हमें खुद बनाना है। तो उसके अंदर एक टाइप एंड टाइप होता है। हम एक टाइप क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड टाइप। सही है? तो वो टाइप एंड टाइप कहलाती है। सो अब फर्ज करें कि मुझे 100 बच्चों का आईडी, नेम और एज जमा करनी है। तो मैं जो है वो डिक्लेयर करूंगा आईडी एज इंटीजर, फिर मैं डिक्लेयर करूंगा नेम एज स्ट्रिंग, और फिर मैं डिक्लेयर करूंगा एज एज इंटीजर। अब फिर मैं क्या करूंगा, इसकी टाइप बना दूंगा। मैं आगे लिखूंगा टाइप स्टूडेंट रिकॉर्ड, और मैं आखिर में क्या लिख दूंगा, एंड टाइप। अब देखिए ये टाइप है। अब मैं इसका एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं। मैं कहता हूं डिक्लेयर R1 एज स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब जब मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू 29, तो किस तरीके से मैं बता रहा हूं इसकी आईडी है? मैं डॉट लगाऊंगा, R1 डॉट ID इज इक्वल टू 29। अब मैं R1 डॉट नेम इज इक्वल टू अब्दुल राफे। इस तरीके से। तो ये जो स्टूडेंट है ना, ये हमारी यूडीटी है, यूजर डिफाइंड टाइप। यूडीटी, user defined type, special type. It is a type which we have made. It is not there by default. All right? मैं चाहूं तो इसका मैं एक एरे भी बना सकता हूं। डिक्लेयर स्टूडेंट एरे एज एरे of 100 students of
स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैं इसको रेफर कैसे करूंगा? फर्स्ट करो कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 9 पे जाना है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट एरे, याद रखेंगे 1D एरे है, स्टूडेंट रिकॉर्ड 9 डॉट ID इज इक्वल टू 901 स्टूडेंट एरे 9 डॉट नेम इज इक्वल टू जफर अली खान। इस तरीके से हम इसको रेफर कर सकते हैं। तो चाहे हम इसको वेरिएबल बना के इस्तेमाल करें या हम इसको एरे बना के इस्तेमाल करें, बोथ आर पॉसिबल। सो दिस इज बेसिकली यूजर डिफाइंड टाइप। दिस इज योर यूजर डिफाइंड टाइप। सही है? तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। सो the structure chart shows this. Sub9 is a function. The Boolean value is returned by sub9 for processing by module A. The original parameter RA is type of integer and RB is type of string. A record type, my type, will be defined with 3 fields to store the value passed between the two modules. Write pseudocode to define my type. ठीक है? अब आपके पास कौन से 3 वेरिएबल्स हैं? आपके पास RA है, B है और C कर लें। यस हम्माद, एग्जैक्टली। लेकिन ये AS के अंदर ना सिंप्लीफाइड वर्जन है। एग्जैक्टली यही बात है, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा इस वर्ड को, बस यस, दैट इज करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, माई टाइप, डिक्लेयर RA एज इंटीजर, डिक्लेयर RB एज स्ट्रिंग, तीसरे का नाम हम RC रख लेते हैं, डिक्लेयर RC एज boolean and type. That's it. You get 3 marks for this. All right. अच्छा, the design is modified and sub9 is changed to a procedure. अब ये जो sub9 था, ये जो है sub9, ये प्रोसीजर बन गया। अब ये रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न कर रहा है तो कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली इसमें हम बाय रेफ करेंगे। The design is modified and sub9 is changed to a procedure. The procedure will be called with a single parameter of type my type. Write the pseudocode header. अब सिर्फ इसमें header लिखना है, हेडर लिखना है sub9। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हम राइट द सूडो कोड, अब हमें हेडर लिखना है ना, तो हम लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर sub9, ठीक है। और इसके अंदर जो ये आपने टाइप बनाई है ना, माई टाइप, इसको हम लिखेंगे बाय रेफ, बाय रेफ। जो भी पैरामीटर है आप इसका नाम रख दें x, उसको लिखेंगे एज व्हाट, माई टाइप। तो ये हो गया आपका, ठीक है, हेडर। तो अब आप देखें यहां पे बाय रेफ है। बाय रेफ में क्या होता है? दो, एक इसका क्या नाम था पहले वाले का? पहले वाले का नाम है मॉड्यूल ए, ये मॉड्यूल ए है, और ये हमारा sub9 है। हमने यहां पे x बनाया, तो ये भी इसको रेफर कर रहा है और ये भी इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाय रेफ। तो ये दोनों जब यहाँ पे चेंज होगा तो x के अंदर भी चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब है जब आप बाय रेफरेंस कॉल करते हैं तो जो भी आपके पास वेरिएबल मेमोरी में बना हुआ होता है उस वेरिएबल का एड्रेस ट्रांसफर होता है, वैल्यूज नहीं होती हैं। यस इट इज द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पर जो है ना, बाय रेफ इज अ डिफरेंट थिंग। बाय रेफ इज नॉट अवेलेबल।
ओवर देयर, ठीक है ना। अच्छा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू सेंड, अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये जरा थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो ये क्या कहता है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू सेंड डेटा between computers. My computers are, sorry, many computers are connected together to form a wired network. Serial ports are used to connect one computer to another. Each computer is assigned a unique 3-digit ID, has 3 ports which are identified by an integer value. Each computer is connected to between 1 and 3 other computers. Each computer is connected to between 1 and 3 other computers. Messages are sent between the computers as a string of characters organized into fields as shown there. STX, destination ID, source ID, data, ETX. So STX is basically a single character marking the start of the message, ASCII value to 02. Destination ID, 3 numeric character identifying the destination computer. Source ID, 3 numeric character identifying the source computer. Data, a variable length string containing the data being sent, minimum length is 1 character. ETX, a single character marking the end of the message, ASCII code value 303. फॉर एग्जाम्पल STX02 गया ASCII कोड, फिर ये हमारे पास चला गया, ये जो पहला कोटेशन है ये STX है, ये ETX, सॉरी STX फिर शुरू होगा, फिर आपके पास आ गई डेस्टिनेशन आईडी, फिर आपके पास आ गई 454, 3 numeric कैरेक्टर्स, 454, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। फिर आपके पास आ गई सोर्स आईडी 202, और फिर 3 कैरेक्टर के बाद आपके पास पूरा स्ट्रिंग चलता है, और फिर आपके पास जो है वो डेटा चला, और उसके बाद ETX आ गया। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। Each computer will run a copy of the same program. Each program will contain a global variable myID of type string, which contains a unique ID of computer in which the program is running. The first 2 program modules are defined as follows. Get data, already written. Returns the data, ये get data already written है. Returns the data field from a message that has been received. If no message is available, the module wait until one has been received. Receive file takes a file name as parameter of type string, creates a text file with the given file name, no checking required. Write the data field returned by get data to the file. Repeat until the data field is star 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 star, which is not written to the file. Output the final message giving the total number of characters written to the file. For example, 1 2 3 4 5 6 characters were written to the new file .txt. Total number of characters written, तो इसका मतलब है हमें कैरेक्टर का टोटल भी करना पड़ेगा। तो आते हैं इसके राइट सूडो कोड फॉर रिसीव फाइल मॉड्यूल गेट डेटा हैज ऑलरेडी बीन रिटन एंड मस्ट बी यूज्ड। अब आप देखिए 7 मार्क्स, एनीथिंग बियॉन्ड 5 मार्क्स इज लेंथी, तो 7 मार्क्स हैं। इसके लिए हम अब लिखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे पास 8 का पार्ट ए है, इसका नाम है रिसीव फाइल मॉड्यूल है। सो द रिसीव फाइल मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डेटा until a specific termination string star 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 is encountered and then saving this data to a file excluding the termination string। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये थोड़ा सा
आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इसको बहरहाल समझना इतना ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाए सबसे पहले प्रोसीजर, रिसीव फाइल, और इसको हम क्या भेज रहे हैं, फाइल नेम। फाइल नेम, फाइल नेम आपके पास आएगा एज स्ट्रिंग। ये प्रोसीजर है, कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा। अब हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल्स, डेटा फील्ड, डेटा फील्ड, और टोटल कैरेक्टर्स, इनको हम कर लेते हैं एज इंटीजर। टोटल कैरेक्टर्स को अब हम इनिशियलाइज कर लेते हैं एज 0। अब हम फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम फाइल को ओपन करेंगे। अब हम यहां लिखेंगे ओपन फाइल। फाइल का जो भी नाम है वो इस स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, और ये क्योंकि हमने क्रिएट करनी है तो हम यहां पे इसको क्रिएट करेंगे फॉर राइट, क्योंकि हमने ये फाइल अभी क्रिएट करनी है। ये फाइल पहले से नहीं थी, तो हमने इसने बताया था हमको कि ये फाइल जो है टेक्स द फाइल नेम विद द गिवन फाइल नेम। ठीक है ना, क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल विद द गिवन फाइल नेम, टेक्स द फाइल नेम, क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल विद द गिवन फाइल नेम, नो चेकिंग रिक्वायर्ड। बस कर दो, कर दो तो कर दो। ये हमने कर दी। अच्छा जी, अब आ जाए रिपीट का लूप लगाते हैं। जब तक के डेटा फील्ड में वो नहीं आ जाता, तो स्टार 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 नहीं आ जाता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा फील्ड में, डेटा फील्ड जो है वो हमें जो है डेटा फील्ड तो स्ट्रिंग होगा ना हमारा। डेटा फील्ड को एज स्ट्रिंग लेंगे, और इसको हम लेंगे एज इंटीजर। अच्छा, अब हम यहां पे लिखेंगे डेटा फील्ड, डेटा फील्ड इज इक्वल टू गेट डेटा। उन्होंने कहा था गेट डेटा बना हुआ है और काम कर रहा है, और आपको जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अज्यूम गेट डेटा रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो ये गेट डेटा आपको दे रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे चेक लगाते हैं कि इफ डेटा फील्ड is not equal to 1 2 3 4 stars, then write file name, comma data field। ये हमने फाइल के अंदर डेटा फील्ड लिख दी। इसके बाद हम टोटल कैरेक्टर्स, टोटल चार्ज को टोटल कर लें। टोटल चार्ज को हमने 0 किया हुआ है। टोटल चार्ज कैरेक्टर्स प्लस लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, ये भी काउंट करते चले जा रहे हैं हम, क्योंकि ये हमें अल्टीमेटली आउटपुट करना है कि इतने कैरेक्टर्स हमने लिख दिए। एंड इफ अंटिल डेटा फील्ड
इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। इसके बाद हम बाहर निकले तो हमने ओपन फाइल की थी, हम क्लोज फाइल कर देंगे। क्लोज फाइल, फाइल नेम, ये हमने क्लोज कर दी फाइल। ठीक है। अच्छा, अब क्लोज करने के बाद हमें आउटपुट करना है कि हमने कितने कैरेक्टर्स लिख दिए। तो हम आउटपुट करेंगे टोटल चार्ज, कॉमा, स्पेस एक देंगे, फिर लिखेंगे, फर्ज करें हमने 1024 कैरेक्टर लिखे तो लिखा हुआ आएगा 1024 कैरेक्टर्स वर रिटन टू फाइल। खत्म बात, दैट्स इट। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंड, ओ सॉरी, एंड प्रोसीजर। सो दैट्स इट। ठीक है ना। तो अब देख लें यहां पे हमने सब काम किया कि नहीं किया। टेक्स अ फाइल नेम, बिल्कुल कर लिया। क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल विद द गिवन फाइल नेम, बिल्कुल कर लिया। राइट्स द डाटा फील्ड रिटर्न बाय गेट डाटा टू द फाइल, बिल्कुल कर लिया। रिपीट्स until द डाटा फील्ड इज for static which is not written to the file, बिल्कुल कर लिया। आउटपुट अ फाइनल मैसेज गिविंग द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन टू द फाइल, बिल्कुल कर लिया। और फिर इसने ये फॉर्मेट दी थी, कैरेक्टर्स वर रिटन टू न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। अच्छा, ये बस एक चीज रह गई। टू, टू के बाद अब आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम। तो जो भी फाइल का नाम होगा वो उसके आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट, द यूज ऑफ स्ट्रिंग स्टार 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 एज एक्सप्लेन्ड, as explained in the module description of receive file may cause a problem. Explain the problem and suggest a solution. अच्छा, क्या प्रॉब्लम ला सकता है कि हमें बताना होगा कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है। यूजिंग, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यही स्ट्रिंग जो है वो आ जाए, यही 4 स्ट्रिंग आ जाए उसके अंदर, यही प्रॉब्लम हो सकती है। सही है ना। तो अगर हम इसको डबल कोटेशंस के साथ जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो इफ द फाइल बीइंग सेंट कंटेन्स अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग स्टार 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 स्टार, देन द फाइल बीइंग रिटन टू द रिसीव फाइल विल एंड। ठीक है ना। तो ये होगा। तो यूजिंग star 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 as a termination string could potentially be problematic if the actual data being transmitted legitimately include 4-star sequence. This would prematurely terminate the data reception leading to incomplete data transfer. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है। यूजिंग स्टार स्टार, अगर यही ट्रांसफर हो रहा है डेटा, सही है, as as the data received using get data, using get data result, get data return value। सही है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। सही है। using star 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 as the data received using get data return value। ठीक है। it is potentially be problematic, potentially be problematic if the, as it will
prematurely terminates the loop leading to incomplete data transfer and file data and data written to the file and data written to the file. ठीक है, इसकी सॉल्यूशन क्या है? अब इसकी सॉल्यूशन हमें सजेस्ट करनी है। अब इसकी सॉल्यूशन काफी हो सकती है। पोटेंशियल सॉल्यूशन इज टू इम्प्लीमेंट एन escaping mechanism for the data. If star star needs to be sent as part of the actual data, it could be escaped with a special character or sequence, for example, by preceding it with backslash. The backslash हम उसके साथ लगाते पहले. The receiving end would then need to interpret this escape sequence correctly and removing the escape characters when writing data to the file. ये भी हम कर सकते हैं, स्पेसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ना कोड के अंदर जो है वो कुछ ऑल्टरेशंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, रीड द फाइल। तो हम ये कर सकते हैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस में कि हम टर्मिनेटर स्ट्रिंग हम चेंज कर दें, हम कुछ और कर दें। तो स्केपिंग मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको बताया ये कर दें, कोई स्पेस विस्पेस लगा दें। हमजा जावेद, यू आर राइट। another 10-15 मिनट्स सही है। तो अब उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो स्टार स्टार को चेंज करके कोई बाय शाय का सिस्टम लगा दें। हम स्टार स्टार पे उसको चेंज ही ना करें, तो हम कुछ और कर दें। ठीक है, तो अगर स्टार स्टार हो तो उसकी जगह पर कुछ और हम लगा दें। हम क्या कर सकते हैं? आ using coding as, for example, instead of transferring from get data module star 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 star, we send 4 star, and upon receiving alter, क्या नाम था इसका फंक्शन का, receive file procedure to convert 4 star to star 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 and save to file. एंड अगर वो फंक्शन जो गेट डेटा वाला है वो स्टार 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 के बजाय हमें क्या भेज देगा? नमस्कार वॉल्टर वाइट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके उजैर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी,
Alright, अब देखें, two new modules are defined which will allow the user to exchange messages. Transmit and chat takes two parameters. Transmit takes two parameters, a string representing a message, an integer representing a port number. Transmit the message using the given port. Chat takes two parameters, a string representing destination ID, an integer representing a port number, extracts data from a received message using get data and outputs it. Forms a message using data input by the user and sends it using transmit. Repeats until either the output string or the sent string is by. ठीक है? Reminders. Each program contains a global variable myID of type string, which contains the unique ID of the computer in which the program is running. Messages are sent between computers as a string of characters organized into fields as shown this. So this is the format of the message. So what they want? All right, they want us to write the module chat. Module get data and transmit must be used. ठीक है? The chat module allows two users to exchange. Two users are computers to exchange messages until either user sends by. It uses the get data and transmit module for receiving and sending messages respectively. So let's write it down. How many marks? 7. So it's a lengthy one. So procedure chat, it receives, let's say, destination ID. Destination ID and port number. Destination ID as a string, and port number as integer. Port number as integer. All right, then comes repeat. Oh, let's declare local variables as well. Declare message received data as a string. These are the local variables we're going to use. Then comes repeat. Receiving and displaying incoming messages. So receiving and displaying what happened, Hamza? Receiving and displaying incoming messages. All right. Receive data. Receive data local variable जो हमने बनाया था, it is equal to get data. यहां से हमें get data मिल गया. अब हम चेक करेंगे if it is by. If received data is not equal to, let's first deal with that thing, is not equal to by, then output message received is equal to received data. All right. And if अगर बाय नहीं है तो हमने उसको आउटपुट कर दिया. अब आ जाते हैं हम सेंडिंग डेटा. अब हम सेंडिंग डेटा पे आ जाते हैं. ठीक है, या सेंडिंग डेटा मैसेज. अब देखें, इफ रिसीव डेटा इज नॉट इक्वल टू बाय, अगेन इफ received data is not equal to by, then we could have merged these two
ifs together even if you like. सही है। अच्छा, output, now this is prompt. Output, enter your message. Enter your message. And then input the message. ये भी हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था। इफ अगेन हमें चेक लगाना है, इफ मैसेज इज नॉट इक्वल टू बाय, देन अब हमें फॉर्मेट बनानी होगी। कौन सी वाली फॉर्मेट? ये जो हमारे सामने ये फॉर्मेट आई है, ये हमें कंप्लीट करके बनानी होगी। ठीक है, देन अब हम लिखेंगे ट्रांसमिट। अब ट्रांसमिट का इसने हमें बता दिया था कि यहां पर जो है वो ट्रांसमिट भी बना हुआ है। सो फॉर्म अ मैसेज यूजिंग डेटा इनपुट बाय द यूजर एंड सेंड इट यूजिंग ट्रांसमिट। रिपीट अंटिल आइदर द आउटपुट स्ट्रिंग और द सेंड स्ट्रिंग इज बाय। ठीक है, सो अब हम यहां पर लिखेंगे ट्रांसमिट। ट्रांसमिट को हमने कॉल किया और ट्रांसमिट को कॉल करने के बाद हम उसको भेज रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा stx, सॉरी, लेट मी चेक इट वंस अगेन, stx। ठीक है, सो हमने लिखा सबसे पहले stx, फिर इसको हमने कॉन्केटेनेट किया। कॉन्केटेनेट किया किसके साथ? डेस्टिनेशन आईडी। हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा था? डेस्टिनेशन आईडी। डेस्टिनेशन आईडी के साथ हमने इसको कॉन्केटेनेट किया, फिर हमने इसको कॉन्केटेनेट किया माई आईडी के साथ। हमने माई आईडी, माई आईडी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ऑलराइट, माई आईडी इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, माई आईडी के साथ किया, फिर हमने इसके साथ मैसेज को कॉन्केटेनेट किया जो हमने इनपुट कराया है, और फिर हमने इसको फाइनली कॉन्केटेनेट किया etx के साथ। ठीक है, और फिर हमने ये एक स्ट्रिंग बना के इसको पूरा बना के इसको ट्रांसफर कर दिया। बल्कि हम एक काम करते हैं कि हम इसको यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। हम इधर एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। माई स्ट्रिंग, ये सारे के सारे एज स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अब हम ट्रांसमिट को कॉल करते हैं। कॉल ट्रांसमिट। अच्छा, ट्रांसमिट इज अ forms a message and sends it using transmit. Transmit takes two parameters: transmit the message module. So it is a string representing a message and in an integer representing a port number. Transmit the message using the given port. So it is basically a procedure. So हम यहाँ पे लिखेंगे call transmit और उसको हम पहले भेजेंगे my string और फिर उसको भेजेंगे पोर्ट नंबर। फिर हम इसको भेजेंगे पोर्ट नंबर। सही है, और हमने पोर्ट नंबर ऊपर मंगवाया हुआ है, यहां पर हमारे पास पोर्ट नंबर भी आया हुआ है, तो हम इसको पोर्ट नंबर भेजेंगे। ठीक है, ये हमने इसको पोर्ट नंबर भेज दिया। इसके बाद हमने इसको कर दिया एंड इफ। ठीक है, और फिर हमारे पास अगला एंड इफ भी आ गया।
और फिर आ गया हमारे पास इस रिपीट का until। अब until में क्या आएगा, रिसीव डेटा में बाय होगा या मैसेज में बाय होगा। until received data is equal to by और message is equal to by। ठीक है, और दिस इज योर फाइनली एंड प्रोसीजर। So yes, this is my version of it. I haven't taken any thing from the marking scheme into consideration. This is my version of it. So module get data returns the data field from a message. So I hope that you have seen it. Okay, so everything that is asked, I have covered it in here. Okay, I tried to put this comments as well. These comments are not necessary to be used in exam. All right, the module get data returns the data field from the message that has been received. If no message is available, the module waits until one has been received. All right. So explain the limitation of this on module chat from part C. Describe the modification to get data to address this limitation. So limitation क्या है? Limitation ये the blocking nature of get data causes the program to pause execution until the message is received. अगर गेट डेटा में कोई काम नहीं होगा, उसको रिसीव नहीं होगा, तो वो फिर आगे काम ही नहीं करने देगा, तो प्रोग्राम भी हमारा सही है ना। तो गेट डेटा डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू अंटिल अ मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। सो दिस इज द लिमिटेशन, द ब्लॉकिंग ऑफ नेचर ऑफ गेट डेटा। Blocking nature of the get data causes the program to pause execution until a message is received. This behavior is problematic in interactive applications like chat, where responsiveness is crucial. Real-time responsiveness is crucial. User expects to be able to send message without waiting for an incoming message first. The synchronous, यानी कि blocking execution of get data could hinder the user experience by not allowing outbound messages until an inbound message is received. So limitation में हम लिख देते हैं, 3 मार्क्स का है इसमें बस the blocking nature, the blocking nature of get data could hinder the user experience by not allowing outbound messages until an inbound message is received. As get data does not let go execution until it receives a message। ठीक हो गया, ये हो गया। अब सजेस्टेड क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं? सजेस्टेड मॉडिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि to improve responsiveness and user experience in the chat module, get data can be modified to include non-blocking or asynchronous behavior. When approach is to, इसको जो ये ब्लॉक कर लेता है ना, इसको synchronous कहते हैं।
ये सिंक्रोनस बिहेवियर होता है। अब हमें एसिंक्रोनस करना है, यानी कि कुछ ना भी हो तो चलता रहे। सो टू improve responsiveness and user experience in the chat module, get data can be modified to include non-blocking or asynchronous behavior. One approach is to check for the availability of a new message and return immediately if none is found, allowing the program to continue execution and not halt the user interface or outgoing message. Another could be if no response, if there is no response, allow the receiver to exit chat at any time. So get data should immediately return a suitable message, और हम उसके अंदर टाइमर भी यूज कर सकते हैं, which chat can detect and respond by allowing the conversation to continue. All right. So if no response, then get data, allow the receiver to exit chat anytime and get data should use a set time to wait and let go and come back. So during different attempts, user has ability to exit or send other messages. So that's it. So basically, this question is completed. All right. So I'll be sharing all of this under the chat or in the WhatsApp groups and all. So hopefully you have revised प्रॉपरली। देखें, मैंने कोशिश करी है कि मैं स्लो से स्लो चलूं और जितना समझा सकूं समझाऊं, जो टॉपिक एट हैंड हो उसको भी देखता चला जाऊं, डिटेल में देखता चला जाऊं। सो दैट्स इट। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।